Hello students. So today we are going to start the next topic, that is forfeiture of shares which are issued at premium. Forfeiture of shares which are issued at premium means हम उन shares को forfeiture करेंगे जिनको हमने issue किस पे किया हो, premium पे. The last topic which we already completed is forfeiture of share which are issued at par. Instead of this premium, par is there. But today we are going to look over the topic that is issued at premium. So under this condition there are two situations. Either the amount of premium is paid or not paid. There are two conditions. First one is amount of premium is paid or amount of premium is not paid. So if amount of premium is paid, then there will be no change in the entry of forfeiture. There will be no change in the entry of forfeiture. It will remain same as we were doing in case of par. Forfeiture at par means. तो देखिए एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अनपेड कॉस्ट अकाउंट. सेम थिंग यू हैव टू मेंशन कि इन शेयर कैपिटल यू हैव टू राइट द कॉल्ड अप अमाउंट. In share capital you have to write the called up amount. In share forfeited, amount which is paid by the company, amount which is paid by the shareholder, or you can say received by the company. And to in share unpaid, those shares the amount of which is not yet paid. So this will be the entry when amount of premium is paid. You have to look carefully the question whether the amount of premium is paid or not. If amount of premium is not paid, then that premium will came in onto the debit side of the entry. Same entry रहेगी, share capital to share forfeiture to unpaid. There will be only one change, that the amount of premium will came into the debit side. So the entry will be share capital account debit, security premium reserve account debit, to share forfeited account to share unpaid calls account. So this will be the entry. We have to debit the premium reserve by the amount of premium which is not paid. We have to debit the premium only by the amount of premium which is not paid. तो चलिए we are taking in one example. So the example is share issued 70,000 at rupee 10 each at a premium of rupee 2 per share. Share is of rupee 10 and premium is of rupee 2. So the total becomes 12. Now the amount is payable as on application 3 rupees, allotment 5 including premium, which means 3 plus 2, final call 4 rupees. What is mentioned after this? A shareholder holding 300 shares, एक shareholder जिसके पास 300 shares थे, failed to pay the final call and his share were forfeited. There is another condition, case second, in which a shareholder holding 500 shares failed to pay allotment and call money. This shareholder failed to pay allotment and call money and his share were also forfeited, और उसके शेयर भी तुरंत forfeited कर लिए गए. So pass the necessary journal entry in both the cases. तो देखते हैं. First we have done the first case, that is, so in this you already know about the entry, simple entry for application, allotment, final call, but still I have done it. Just have a look. Bank account debit to share application account. This is the entry of amount of application which is received. So 70,000 shares issued and amount received on application is rupee 3. So 70 into 3, it becomes 2,10,000. Now for transferring this amount into the capital account, entry will be share application account debit to share capital account. Same amount we will transfer into the capital account. Narration you know very well, and you have to pass this entry in the journal format of journal also. This thing you know. So the next entry is share allotment account debit to share capital to security premium. Share allotment account debit to share capital account to security premium reserve account. So how many shares are issued? If you want to do 70,000. What is the amount of allotment? It was completely 5, out of which 3 is for capital and 2 is for premium. Out of this 5, 3 is for capital and 2 is for premium. So 70 into 5, 3,50,000 is the amount of allotment, out of which for capital it is only 210 and remaining 140 is for the premium reserve, security premium reserve account. Now the next entry will be bank account debit to share allotment account. Same amount, 3,50,000. Because no one has failed
in paying the amount of allotment. So for final call, entry will be share final call account debit to share capital account. Same 70,000 into final call, that is of rupee 4. That is of rupee 4. 17 to 4, it becomes 2,80,000. Now for receiving the amount of final call, entry will be bank account debit, calls in arrear account debit to share final call account. Why calls in arrear debit? Because 300 shareholders failed to pay the amount of फाइनल कॉल. 300 शेयर होल्डर्स जो थे वो फाइनल कॉल का अमाउंट पे करने में फेल हो गए थे. सो दैट्स वाई यू हैव टू मेंशन 300 इंटू 4, दैट बिकम्स 1200. मीन्स कंपनी कॉल्ड फॉर 2,80,000. कंपनी ने कितना पैसा मंगाया? 280. आउट ऑफ विच 300 शेयर होल्डर्स फेल टू पे. सो हाउ मच अमाउंट दे फेल टू पे? 3 into 4, that is 1,200. It means out of 2,80,000, 1,200 is not received. So what amount is received? That is 2,78,800. After this failure of final call, company forfeited these shares. तो देखिए क्या इन 300 वालों ने, फर्स्ट केस वी आर डूइंग, क्या इन 300 वालों ने प्रीमियम पे किया है? नहीं किया. यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस थिंग कि वेदर अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड और not paid. Amount of premium is paid or not paid, this thing you have to identify. So please look carefully. A shareholder holding 300 share failed to pay final call. What he fails to pay? Final call. And final call is of rupee 4. And क्वेश्चन में प्रीमियम भी है, दैट इज ऑफ रupee 2. एंड दिस प्रीमियम इज इंक्लूडेड और कॉल्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. ये प्रीमियम कहाँ पे इंक्लूड है? आपके अलॉटमेंट पे. तो ये प्रीमियम कहाँ इंक्लूड है? आपके अलॉटमेंट पे. इट मीन्स क्या ये जो शेयर होल्डर है 300 शेयर जिसके पास हैं, क्या इसने प्रीमियम पे नहीं किया? नो, ही ऑलरेडी पेड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम बिकॉज ही फेज टू पे ओनली फाइनल कॉल. ये क्या पे करने फेल हुआ है? केवल फाइनल कॉल. फाइनल कॉल पे करने फेल हुआ है, विच मीन्स कि इसने प्रीमियम का अमाउंट पे कर दिया. सो दैट्स वाई दिस एंट्री वी हैव टू पास फॉर द फॉरफीचर, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट या फॉरफिटेड यू कैन राइट टू शेयर अनपेड कॉस्ट अकाउंट. सो सेम एंट्री वी हैड पास्ड हियर ऑल्सो. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर अनपेड. अनपेड में जो नहीं पे किया दैट इज फाइनल कॉल, सो वी कैन राइट फाइनल कॉल अकाउंट. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शेयर विच इज़ कॉल्ड? सो इट इज़ एंटायरली 10 की एप्लीकेशन भी मंगा लिया, अलॉटमेंट भी मंगा लिया, फाइनल कॉल भी मंगाई, बट शेयर होल्डर फेस टू पे फाइनल कॉल. सो दैट्स वाई called up amount is that total 10 rupee. 300 into 10, it becomes 3,000. Out of which what amount he paid? So he paid application as well as allotment. So we don't need to include premium in this situation because premium is already paid. So there will be no role of premium in this entry. So 300 into 6, because final call 4 का पे नहीं किया, तो out of 10 4 is not paid, it means 6 is paid. So the entry will be, the amount will be 3,000, 1,800 and 1,200. I hope it is clear to you all. Moving toward the second case, what is mentioned in second case? A shareholder holding 500 shares failed to pay allotment and call money, and his share were also forfeited. Here this shareholder fails to pay both allotment as well as कॉल मनी. सो सिंपल एंट्री तो आपको यही करनी है जो हमने की थी. व्हाट एंट्री वी नीड टू पास फॉर फॉरफीचर देखते हैं. और उससे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखा है? सो एप्लीकेशन विल रिमेन एज सेम एज केस 1. मीन्स एप्लीकेशन की एंट्री वही रहेगी जो हमने केस 1 में यहाँ पे की है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. दिस एंट्री वी हैव टू डू. But for allotment, the entry will be share allotment account debit to share capital to security premium. This is same as earlier जो कि हमने यहाँ पे की है, आपको शायद visible भी होगा. Share allotment account debit to share capital to security premium reserve account. Same entry you have to pass here also. Amount is also same. If you notice, amount is also same. But what is received? This is the amount which is called by the company due. But what is actually received फॉर अलॉटमेंट? तो देखते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट. वाई वी मेंशन कॉल्स इन एरियर? बिकॉज 500 शेयर होल्डर फेज टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट. 500 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जो कि अलॉटमेंट का अमाउंट पे करने में फेल हो गए. इट मीन्स 500 इंटू अलॉटमेंट, दैट इज टोटली 5 into 5, it becomes 2,500. So out of 3,50,000, 2,500 is not received, which means 3,47,500 is received on account of allotment. इसका मतलब क्या है? अलॉटमेंट के टाइम पे हमें 3,47,500 रिसीव हो गया है. नाउ फॉर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, वी विल कॉल द एंटायर अमाउंट. पूरा पैसा हम मंगाएंगे. सो इट इज़ 2,80,000. Now what is actually received? So for that
Bank account debit calls in arrear account debit to share final call. 280. Here also those 500 shareholders fail to pay final call also. So 5 into 4, final call is of rupee 4. So that's why it becomes 2000. It means out of 280, 2000 is not received, which means 2,78,000 is the amount which is received by us. 2,78,000 is the amount which is received by us. So now we have to forfeit these shares, because if you will read the question, what is mentioned? Fail to pay allotment and call money, then his share were also forfeit. फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल एंड देन हिज शेयर वर फॉरफिट. तो देखिए हमने देखा अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल इज नॉट पेड, नाउ वी आर गोइंग टू फॉरफिट दीज शेयर्स. सो व्हाट एंट्री वी हैव टू पास फॉर इट? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट security premium reserve, because we have I already told you that if amount of premium is not paid, then we have to debit the premium, तो इस क्वेश्चन में, इस सेकंड केस में, दिस शेयर होल्डर फेल्स टू पे अलॉटमेंट, एंड अलॉटमेंट में आपको पता है प्रीमियम इंक्लूड है. इट मीन्स प्रीमियम को हमें क्या करना होगा फॉरफीचर के टाइम पे? डेबिट. सो द एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, एंड दीज आर द अनपेड कॉल्स. अनपेड में इस बार दो चीज़ें नहीं पे करी हैं, तो बोथ द कॉल्स हैज़ बीन मेंशन, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फाइनल कॉल. हाउ मेनी शेयर्स वी आर फॉरफिटेड दिस टाइम? 500. प्राइस ऑफ वन शेयर इज 10 बिकॉज द एंटायर अमाउंट इज कॉल्ड अप. यहाँ पे कॉल कितना किया? तो पूरा का पूरा फेस वैल्यू कॉल किया गया. इट मीन्स 10. And what is the amount of premium which is not yet paid? That is rupee 2. So amount which is paid, that is only application. क्या पे किया है? सिर्फ application. And application कितने का है? 3. allotment is of 5 and final call is of 4. just multiply it, you will get your amount for the forfeiture. I hope it is clear to you all. शायद ये आप सबको समझ में आ गया होगा. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So moving toward the next question, that is first question of your this topic as per new book, question number 42. I'm just reading the question, please listen carefully. Ankit Limited issued 20,000 equity shares of rupee 10 each. How many shares are issued? For 20,000 at rupee 10 each. So this is question number 42. This is question number 42. So how many shares are issued in this question? For 20,000. कितने शेयर इशू किए गए हैं? शेयर इशूड आर 20,000 एट रुपी 10 ईच. फेस वैल्यू क्या है शेयर की? 10 ईच. प्रीमियम इज ऑफ रupee 2. प्रीमियम कितने का है? 2 रुपीज़ का. सो द टोटल बिकम्स 12. टोटल क्या हो जाएगा आपका? 12. पेबल एज एप्लीकेशन रupee 3. एप्लीकेशन के टाइम पे कितना अमाउंट पे कर दिया गया है? 3 रुपीज़. अलॉटमेंट rupee 5. अलॉटमेंट rupee 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम. इंक्लूडिंग प्रीमियम मीन्स 3 + 2. 3 + 2. फर्स्ट कॉल इज ऑफ rupee 2. फर्स्ट कॉल कितने की है आपकी? 2 रुपये की. एंड फाइनल कॉल इज ऑफ ऑल्सो rupee 2. फाइनल कॉल भी कितने की है? सेम 2 रुपीज़ की. सो आगे आप देखेंगे तो व्हाट इज मेंशन इन द क्वेश्चन कि विजय हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स. विजय जिसको 500 शेयर अलॉट किए थे, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. मीन्स इस क्वेश्चन में हमें केवल फॉरफीचर से रिलेटेड एंट्रीज करनी है. एंड व्हाट आर द इन्फॉर्मेशंस आर गिवन. सो इन केस फर्स्ट what is mentioned? Vijay did not pay allotment money and his share were forfeited immediately. Vijay did not pay allotment money. क्या पे नहीं किया विजय ने? allotment money and his share were forfeited immediately. सो ध्यान से देखिए विजय के पास अच्छा शेयर्स कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा विजय हैज़ 500 शेयर्स. विजय हैज़ 500 शेयर्स एंड ही फेल्स टू पे अलॉटमेंट अमाउंट मनी एंड हिज शेयर इमीडिएटली फॉरफिट. तो अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि विजय ने अलॉटमेंट नहीं पे किया. अलॉटमेंट मीन्स अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है. इट मीन्स प्रीमियम भी पे नहीं किया होगा. एंड हियर यू हैव टू पास द एंट्री फॉर फीचर ओनली. यहाँ पे केवल आपको फॉर फीचर की एंट्री करनी है. सो द एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर capital account debit. And what I told you in the last question कि if premium is not paid then you have to debit the premium also. किस नाम से डेबिट कर देंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अनपेड कॉल्स अकाउंट, टू शेयर अनपेड कॉल्स अकाउंट. सो व्हाट इज नॉट पेड बाय विजय? सो ओनली अलॉटमेंट. सो जस्ट राइट हियर टू शेयर allotment account, to share allotment account. And just after allotment his shares are forfeited. allotment के just बाद इसके शेयर forfeited कर दिए गए हैं. so देखिए here in capital what we have to show that the amount which is called. तो फेस वैल्यू अगर देखें तो 3 रुपीज़
out of 5, 3 of allotment and 3 of application. It means what is called 6. Premium which is called, that is 2, or you can say premium which is not paid, that is 2, into forfeited. क्या पे किया है? सो शेयर होल्डर पेड ओनली एप्लीकेशन, बिकॉज क्वेश्चन लिखा है अलॉटमेंट पे नहीं किया. इट मीन्स एप्लीकेशन पे कर दिया होगा. सो एप्लीकेशन इज ऑफ ₹3. सो व्हाट इज नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट? तो अलॉटमेंट कितने की है? टोटल 5. वैसे भी आप देखेंगे डेबिट 8 क्रेडिट 3. इट मीन्स ₹5 क्रेडिट में कम है. हाउ मेनी शेयर्स मिस्टर विजय हैज़? सो ही हैज़ 500 शेयर्स. So you can just multiply it. 5 into 6, 3000, then 5 to 1000, and then remaining. So for remaining the amount will be 5 into 3 1500 and 5 into 5 2500. 5 into 5 2500. So the amount which is paid is 1500. The amount which is not paid is 2500. So this is the first case. This will be the entry in case 1. What is mentioned under case? I hope it is clear. Second case, what is mentioned in second case? Vijay did not pay allotment and first call. His share were forfeited after first call. सेकेंड केस में क्या लिखा है? विजय ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है और इसके बाद उनके शेयर फॉरफिटेड कर लिए गए हैं. सो हेयर यू हैव टू पास द एंट्री फॉर फॉरफिचर ओनली. सो व्हाट इज नॉट पेड? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल. सो व्हाट विल बी द एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. हेयर ऑल्सो फॉर शेयर होल्डर फेल्स टू पे अलॉटमेंट. अलॉटमेंट पे नहीं किया तो प्रीमियम भी पे नहीं किया होगा. एंड वेन एवर प्रीमियम इज नॉट पेड वी हैव टू डेबिट इट एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर. तो फॉरफिचर के टाइम पे हमें क्या करना होता है? इसे डेबिट. सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर अनपेड, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट एंड देन टू शेयर अनपेड. तो फॉरफिचर एंड टू शेयर unpaid. So what is not paid in this second case? क्या पे नहीं किया है? So allotment and first call, both the things has not been paid. So to share allotment account, to share allotment account and to share first call account, to share first call account. This will be your entry. ये क्या होगी आपकी एंट्री होगी इस कंडीशन में. हाउ मेनी शेयर्स मिस्टर विजय हैज़? 500. तो ये तो कंफर्म है कि सब में मल्टीप्लाई आपको 500 से ही करना है. नाउ द थिंग इज व्हाट अमाउंट वी हैव टू यूज़. कैपिटल में कॉल्ड अप आता है. देखिए क्या पैसा मंगाया गया? तो एप्लीकेशन पे कर दिया है, अलॉटमेंट पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया और फर्स्ट कॉल के बाद शेयर छीन लिए हैं, फॉरफिटेड कर लिए हैं, जब्त कर लिए हैं. सो इट मीन्स एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, दीज 3 थिंग्स और दीज 3 कॉल्स हैज़ बीन कॉल्ड अप. ये 3 चीज़ें मंगाई गई हैं. सो 3, 3, 6 to 8 एज पर फेस वैल्यू ₹8 हैज़ बीन कॉल्ड एंड ₹2 ऑफ प्रीमियम विच इज़ नॉट येट पेड. एंड फॉरफिटेड में क्या पे किया है? तो दैट इज़ ओनली एप्लीकेशन. सिर्फ एप्लीकेशन पे किया है. अलॉटमेंट 5 की पे नहीं करी, फर्स्ट कॉल ₹2 की पे नहीं करी. मल्टीप्लाइड बाय 500, सो यू विल गेट 4000, 1000 एंड हेयर 1500, 2500 एंड 1000. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल. ये भी शायद आप सबको समझ में आ गया होगा. देखते हैं केस थर्ड की तरफ क्या लिखा है केस थर्ड में. तो अगर आप रीड करेंगे, इट इज मेंशन विजय फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली. व्हाट इज मेंशन? विजय फेल्ड टू पे ओनली फर्स्ट कॉल. क्या आप नहीं पे किया? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल और तुरंत शेयर छीन लिए गए, तुरंत शेयर छीन लिए गए. सो व्हाट एंट्री यू विल पास इन दिस केस फॉर फॉरफिचर? फॉरफिचर के लिए क्या एंट्री आप पास करेंगे इस केस में? तो देखते हैं. इट मीन्स एप्लीकेशन पेड, अलॉटमेंट पेड. व्हाट इज नॉट पेड? दैट इज फर्स्ट कॉल. तो फर्स्ट कॉल देखो, अलॉटमेंट पे कर दिया, इट मीन्स प्रीमियम भी पे कर दिया होगा. एंड व्हाट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि इफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड, इफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड, then we have to pass simple entry which we were passing in the time of forfeiture of shares at par. कि forfeiture of share at par के टाइम पे जो एंट्री हम करते थे वही एंट्री हमें करनी होगी. सो एंट्री क्या थी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू शेयर अनपेड कॉल अकाउंट. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू शेयर अनपेड. अनपेड में क्या पे नहीं किया है? व्हाट इज नॉट पेड बाय मिस्टर विजय? दैट इज फर्स्ट कॉल, दैट इज first call. So to share first call, what you have to write? To share first call account. How many share Mr. Vijay has? That you already know. That is 500. 500 share Mr. Vijay के पास. So you have to multiply all the things by all the accounts by 500. Multiply by called up. So क्या मंगाया गया है? ₹3 application, allotment, first call. ये 3 चीज़ें मंगाई. तो we have to consider their face value only. तो देखिए 3, 3, 2. इट मीन्स ₹8 हैज़ बीन कॉल्ड अप. कितना पैसा मंगाया गया है? 8. व्हाट इज नॉट पेड? फर्स्ट कॉल. इट इज़ ऑफ ₹2. इट मीन्स क्या पे कर दिया है?
तो एप्लीकेशन के 3 और अलॉटमेंट के 3, इट मीन्स 6 हैज़ बीन पेड अप। कितना पे कर दिया है? 6 रुपये। तो 5 इंटू 8 4000, 5 इंटू 3 6 3000 and 5 into 2 1000. I hope this entry is also clear to you all. Moving toward the fourth case की तरफ चलते हैं। तो देखिए what we have to do, फोर्थ केस में क्या लिखा हुआ है? विजय फेल टू पे बोथ द कॉल्स एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। विजय फेल टू पे बोथ द कॉल्स मीन्स फर्स्ट कॉल एज वेल एज फाइनल कॉल, बोथ द कॉल्स हैज बीन नॉट पेड बाय विजय एंड देन हिज शेयर वर फॉरफिटेड। विजय ने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दोनों पे नहीं करी है और इसके बाद विजय के शेयर फॉरफिटेड किए गए हैं। आई होप शायद समझ में आया हो। तो आप देखेंगे व्हाट एंट्री वी हैव टू पास इन दिस केस, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हेयर ऑल्सो प्रीमियम इज पेड, यहाँ भी प्रीमियम पे कर चुके हैं, सो वी डोंट नीड टू डेबिट द प्रीमियम, हमें प्रीमियम को डेबिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू शेयर अनपेड कॉल अकाउंट। फॉरफिचर के बाद क्या लिखेंगे? टू शेयर अनपेड कॉल अकाउंट। सो व्हाट इज नॉट पेड? सो हेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, बोथ द कॉल्स हैज नॉट बीन पेड। Here both the calls has not been paid, so share first call account to share final call account. And how many share Mr. Vijay has? That is same in all the conditions, so you have to multiply all the accounts by 500, multiply by called up। कितना पैसा मंगाया गया? तो यहाँ पे फाइनल कॉल मीन्स लास्ट कॉल तक मंगाया गया, इट मीन्स फेस वैल्यू पूरे 10 के 10 रुपये मंगाए गए हैं, आउट ऑफ विच फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 हैज़ नॉट बीन पेड, इट मीन्स 6 रुपये हैज़ बीन पेड। यू डोंट हैव टू कंसीडर द प्रीमियम अमाउंट इनटू इट, ध्यान रखिएगा प्रीमियम का अमाउंट कंसीडर नहीं करना है। सो 5 into 10 5000, 3000, 1000 and 1000, this will be your entry. I hope it is clear to you all. Please सॉरी, तो शायद समझ में आ गया होगा आप सबको, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या लिखा है इसमें। तो वी आर जस्ट गोइंग टू रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 एज पर न्यू बुक। 43 क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्लैक स्टोर लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ब्लैक स्टोर लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं, एक कितने का है? 10 रुपीज़ का। पेबल एज एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर, प्रीमियम कितना है? 3 रुपीज़ का। पेबल एज 5 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, बचा हुआ पैसा फर्स्ट कॉल पे। ऑल दी शेयर्स ऑफर्ड वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, मतलब जितने भी शेयर इशू किए गए हैं उतने शेयर के लिए वो लोगों ने अप्लाई भी किया और उनको हमने वो शेयर अलॉट भी कर दिए। लिखा है ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड, अलॉटमेंट पे जितना अमाउंट मिलना था सब रिसीव हो गया एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर्स। व्हाट इज मेंशन इन थर्ड लाइन ऑफ द क्वेश्चन? एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर्स मीन्स 200 शेयर होल्डर अलॉटमेंट का अमाउंट पे करने में फेल हो गए हैं। कॉल वॉज मेड, फिर कॉल मंगाई गई। ऑल द अमाउंट ड्यू देयर ऑन वॉज रिसीव्ड, कॉल पे भी सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर होल्डर्स, 300 लोगों को छोड़ के, 300 शेयर्स जिनके पास है उन्होंने पेमेंट नहीं करी। एंड रेस्ट ऑल द अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल ऑल्सो। सो डायरेक्टर फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। समरी लिख देते हैं क्वेश्चन की सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू पास द एंट्रीज। 10,000 शेयर्स हैज़ बीन इशूड, हाउ मेनी शेयर्स हैज़ बीन इशूड? 10,000 एट ₹10 ईच, एक कितने का है? 10 का, एक शेयर कितने का है? 10 का। एंड अब देर इज प्रीमियम ऑल्सो, देर इज प्रीमियम ऑफ ₹3, इट मीन्स टोटल बिकम्स 13, एक शेयर कितने का हो गया आपका? टोटल 13 का। सो द टोटल फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर बिकम्स 13, शेयर की टोटल फेस वैल्यू क्या हो गई है? 13। आउट ऑफ दिस 13 एप्लीकेशन इज ऑफ ₹5, एप्लीकेशन कितने की है? 5। अलॉटमेंट इज ऑल्सो ऑफ ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, इट मीन्स 2 + 3। बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो देखिए 13 था, 5 5 10, इट मीन्स व्हाट इज रिमेनिंग? दैट इज 3 रुपीज़। फर्स्ट कॉल कितने की हो गई आपकी? 3 रुपये की। आगे आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? सारा पैसा मिल गया है। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 200 शेयर होल्डर्स फेल, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल 300 शेयर होल्डर्स फेल। अलॉटमेंट के टाइम पे 200 शेयर होल्डर फेल हैं और फर्स्ट कॉल के टाइम पे 300 शेयर होल्डर फेल हैं। तो देखिए अब आप बताओ हाउ मेनी शेयर होल्डर्स फेल टू पे अलॉटमेंट? 200 एंड हाउ मेनी ऑन फर्स्ट कॉल? 300। इट मीन्स जिन लोगों ने अलॉटमेंट नहीं दिया क्या उन्होंने फर्स्ट कॉल पे की होगी?
Definitely no. It means out of this 300, 200 shareholders belong to, means they are old shareholders which those which haven't paid the amount of allotment. कि इस 300 के अंदर 200 शेयर होल्डर वो हैं जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया है, 100 शेयर होल्डर्स केवल ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है। तो क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्टर ने उन शेयर होल्डर्स को फॉरफिटेड किया है जिन्होंने बोथ द कॉल्स नहीं पे करी, मीन्स अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं पे करी। इट मीन्स 200 शेयर होल्डर्स को। सो सिंपल एंट्री आई थिंक यू कैन पास। फॉरफीचर की एंट्री में कर देता हूँ यहाँ पे, क्या करनी है आपको, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन शॉर्ट आई एम राइटिंग SPR ओनली, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट एंड टू शेयर अनपेड। सो व्हाट इज नॉट पेड हियर, अलॉटमेंट एज वेल एज फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट एज वेल एज फर्स्ट कॉल। और प्रीमियम क्यों डेबिट किया, बिकॉज अलॉटमेंट पे नहीं करी तो प्रीमियम भी पे नहीं किया होगा। हाउ मेनी शेयर वी आर फॉरफिटिंग, सो 200, इट मीन्स ऑल दी अकाउंट्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय 200। आगे देखते हैं, एक शेयर कितने का है, 10 का, एंड द एंटायर अमाउंट हैज़ बीन कॉल्ड, बिकॉज फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिचर कर रहे हैं, इट मीन्स 5 ये 2 ये और 3 ये 10 का 10 कॉल किया गया है, आउट ऑफ विच प्रीमियम ऑफ 3 हैज़ नॉट बीन पेड, यानी क्या पे किया गया है, तो केवल एप्लीकेशन विच इज़ ऑफ ₹5 एप्लीकेशन पे किया गया है तो वो फॉरफिटेड में आ गया। अलॉटमेंट का फेस वैल्यू दैट सॉरी टोटल अलॉटमेंट लेंगे यहाँ पे 5, और फर्स्ट कॉल कितने की पे नहीं करी, दैट इज़ ऑफ ₹3। सो जस्ट मल्टीप्लाई इट, 2000, 600, 1000, 1000 एंड 600, दिस विल बी योर एंट्री फॉर फॉरफीचर। आई होप शायद आपको समझ में आ गया हो। तो पढ़ते रहिएगा, ट्राई करते रहिए आगे के क्वेश्चंस भी, बाकी जितनी भी चीज़ें हों आप पूछते रहिए। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।